کہ نہیں, عقیدت کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھائے سرد سٹاپ لہجے میں کہا تو عقیدت نے چونک کر زرگم خان کو دیکھا۔ کیوں پوچھ رہے ہو لالا کا؟ جہاں مرضی ہو وہ، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اب جب مرضی وہ آئے تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ زرگم خان کا سوال عقیدت کو بری طرح سہما گیا تھا۔ وہ جتنی مرضی بہادر بن جائے مگر اپنے بھائی کی بات ہونے پر وہ ہمیشہ حساس ہو جاتی تھی۔ ہدایق شاہ تو عقیدت کے لیے جینے کی وجہ تھا، اپنے بھائی پر وہ جان چھڑکتی تھی۔ فضول مت سوچو، ایسا کوئی ارادہ نہیں میرا فی الحال، بس ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ عقیدت کی سوچ کو پڑھ کر زرگم خان نے ڈپٹنے کے انداز میں کہا۔ اسے مقدس بیگم کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، جس قدر وہ پرسکون نظر آ رہی تھی زرگم کو شک تھا کہ کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، ورنہ کبھی اتنی پرسکون نہ ہوتی وہ تو کبھی مبین بیگم کو حویلی میں برداشت نہیں کرتی، اس لیے شین خان کے مرنے کے بعد جب سے مبین بیگم آئس خان کو لے کر گئی تھی تب سے ایک دو بار بامشکل حویلی آئی تھی۔ کیوں راتوں رات دشمن سے محبوبہ بن گیا ہے میرا بھائی جو اس کی خیر خیریت پوچھ رہے ہو؟ زرگم خان کے گالر کو جھٹکتے اپنے چہرے کے قریب زرگم کے چہرے کو کرتے چبھتے لہجے میں گھرا کر کہا تو زرگم خان نے سخت نظروں سے عقیدت کو گھورا۔ ہا، محبوبہ تو نہیں، محبوب بیوی کا بھائی ہے، میرا اکلوتا سالہ، اس کی خیر خیریت کا پوچھنا میرا فرض ہے۔ اپنے دائیں بازو کو عقیدت کی کمر کے گرد لپیٹتے 2 انچ کے فاصلے کو سمیٹتے گمبھیر لہجے میں کہا تو عقیدت کے چہرے کے خوبصورت خد و خال میں سرخیاں کھل گئی۔ میں تمہاری محبوب بیوی ہوں؟ سبز نگینوں جیسی آنکھوں میں بے یقینی لیے زرگم خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھا، سرگوشی نما آواز میں پوچھا تو زرگم خان کی مونچھوں تلے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ صرف محبوب من جانم، یار من ہو تم، اس دل ان دھڑکنوں کی من یارم ہو تم۔ عقیدت چاہ کے بھرے بھرے گلابی گالوں پہ اپنی ناک ٹریس کرتے خمزار آلودہ لہجے میں کہا تو عقیدت کو اپنے پورے وجود میں سرد لہریں سرایت کرتی محسوس ہوئیں۔ زرگم خان کی پرتپش سانسیں اپنے ہونٹوں پہ محسوس کر کے عقیدت کو اپنے گلے میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ اپنے خشک پڑتے حلق کو تر کر کے زرگم خان کے حصار میں قسم کساتے ہوئے کہا تو زرگم خان نے اپنا حصار عقیدت کے گرد سخت کرتے ہوئے صوفے کو پیچھے گراتے عقیدت کو خود میں بھینچ لیا۔ تمہیں دیکھنے، تمہیں محسوس کرنے، اپنے حق کا استعمال کرنے آیا ہوں۔ خود پہ جھکی عقیدت کے بالوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں الجھا کر عقیدت کے سر کو پیچھے کرتے اپنے سلگتے لب عقیدت کی شہ رگ پر رکھے، زرگم خان کے سلگتے ہونٹوں کا لمس، شدت برا لمس اور دھاڑی کی چبھن محسوس کر کے عقیدت کو اپنی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہوتی محسوس ہوئی۔ زرگم خان کے سینے پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ایک جھٹکے میں زرگم کا حصار توڑ کر پیچھے ہوئی، خون چھلکاتا چہرہ لیے بکھڑے تنفس کو بحال کرتی خمار آلودہ نظروں سے صوفے پر سر کے پیچھے دونوں ہاتھ رکھے لیٹے زرگم خان کو دیکھا، جو معنی خیز خاموش نظروں سے عقیدت چاہ کے دلکش سراپے کو گہری استحقاق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شادی کی شاپنگ مت کرنا، کیونکہ تمہیں میں اپنی پسند کے رنگوں میں رنگا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے شاہ حویلی میں جاتے ہی تمہارا سارا سامان پہنچ جائے گا، بارات پر تم وہی لہنگا پہنو گی جو میں بھیجوں گا، ورنہ دوسری صورت میں کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر کمرے میں لے جا کر خود چینج کرواؤں گا۔ تمہاری مرضی ہے، اور اپنے بھائی سے رابطہ کرو، کیونکہ شادی کے بعد 5-6 ماہ تک ہنی مون منانے کا ارادہ ہے میرا۔ یہ نہ ہو پیچھے سے آ کر شادی کا اعلان کر دے، اور میری بہن میری غیر موجودگی میں بغیر شادی نہیں کرے گی، اسے کہو شادی کرنی ہے تو ابھی پہنچ جائے، بعد میں مجھے قصوروار نہ ٹھہرائے۔ عقیدت کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو پیچھے پشت پر باندھتے اپنے حصار میں لیتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عقیدت نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں دونوں کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کا شور برپا تھا۔ اپنے چہرے پر زرگم کی پرتش نظروں کو محسوس کر کے عقیدت نے نظروں کا رخ پھیرا، نظریں مسلسل عقیدت کے گلابی بھرے بھرے ہونٹوں پہ اٹکی ہوئی تھیں۔ دل و دماغ عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ اس 2 انچ کے فاصلے کو ہمیشہ کے لیے سمیٹ دے، آگے بڑھ کے ان نازک پنکھڑیوں کو اپنی شدت بھری گرفت میں قید کر لے، اس نازک وجود کو اپنی شدت بھرے لمس سے مہکا دے، مگر ماں کی قسم زنجیر کی طرح پاؤں میں لپٹی ہوئی تھی۔ چہرہ عقیدت کی گردن میں چھپا کر گہری سانس بھر کے عقیدت کی خوشبو کو اپنی روح تک محسوس کیا۔
और फिर अकीदत को समझने का मौका दिए बगैर इसे पीछे सोफे पे धकेल के लंबे लंबे डंक भरता वहां से निकलता चला गया, जबकि ये नहीं जानता था कि आगे एक और आजमाइश जरगम की मुंतजिर थी जो इसे फिर से अकीदत शाह की नज़रों में घिरा देगी। दोनों खानदानों में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हो चुकी थी। सुनने को यकीन करना मुश्किल था कि एक दूसरे की जान के दुश्मन कैसे इतनी आसानी से दुश्मनी को ख़त्म करने को तैयार हो गए, मगर वो गांव वाले इस बात से भी वाकिफ थे कि शाह खानदान की दो लड़कियां खान खानदान के लड़कों से मंसूब हैं और यहाँ मंग छोड़ने का रिवाज नहीं था। शाह हवेली में सिर्फ सुबह से अफरा तफी मची हुई थी क्योंकि आज अकीदत और हुरिया की मेहंदी थी। सब काम हलीमा और समरीन बेगम अपनी निगरानी में करवा रही थी क्योंकि बहराम शाह किसी बहुत ज़रूरी काम से शहर गया हुआ था। वो वो इस कदर लापरवाह तो नहीं था कि सारी जिम्मेदारियां किसी और के हवाले करके खुद शहर चला जाता। समरीन बेगम को शक था वे कोई बात ज़रूर छुपा रहा है। पिछले कुछ दिनों से वो टेंशन में नज़र आ रहा था। कई दिन वो फ़ोन हवेली करके हदायत के बारे में भी पूछ चुका था कि इससे राब्ता हुआ कि नहीं, और अपनी बात करके वो कोई भी जवाब दिए बगैर फ़ोन रख देता, जिस पे समरीन बेगम को जी भर के गुस्सा आता। हवेली में मुलाजमों की फौज थी, मगर जब तक सर पे खड़े होकर काम ना करवाया जाए मुलाजम भी काम छोटे से काम को बढ़ा देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या करूं। बहराम तो चलो काम से चला गया, मगर बलाज कभी जो ये लड़का मेरी सुन ले। घर की दो बेटियों की शादी है और कोई मर्द ही घर नहीं। एक तो पहले मुझे अकीदत पे गुस्सा था, लाख समझाया कि जल्दी आ जाए, मगर नहीं, 2 दिन पहले आई। बलाज और अकीदत की फितरत एक जैसी ही है, दोनों ही ज़िद्दी और बागी हैं। जिस काम से रोको वही करेंगे। इस लड़के से मैंने कहा भी था कि इस बार जाए तो जल्दी वापस आ जाए या वहाँ जाके अपना फ़ोन बंद ना करे, मगर नहीं, माँ की अब सुनता ही कौन है। अकीदत और हुरिया की शादी के कपड़ों की पैकिंग करके बैग में रखते समरीन बेगम ने झुंझलाते हुए कहा तो हलीमा बेगम ने भी सर हिलाकर इनकी बात की ताकीद की। सलवा बच्ची भी घन चक्कर बनी हुई है, कभी हुरिया के लिए पार्लर से अपार्टमेंट लेना, कभी अकीदत के लिए दोनों के कपड़े और ज्वेलरी वगैरह को देखना, घर में आए मेहमानों को देखना। वैसे 1000 काम होते हैं शादी वाले घर, कभी इसके सुन लो तो कभी उसकी सुन लो। हलीमा बेगम ने सर झटकते हुए कहा तो समरीन बेगम ने हंकारा भरा, इन्हें छोड़ो, तुम ये देख लो, तुम तो अपने घर वालों के रिवाजों को अच्छे से जानती होगी। ये कैसे शादी में लेन देन करते, मुकद्दस के ख़ानदान में जो कपड़े देने वो मैंने इस बैग में कर दिए हैं और मुबीन के लिए इस बैग में, बाकी रह गए हवेली वाले, इनकी पैकिंग तो तुमने रात में ही कर ली थी। चांदी के सिक्के और जेवर वगैरह बहराम के लॉकअप में रखे थे मैंने। वो कह तो रहा था कि रात से पहले आ जाएगा, तब निकलवा लूँगी इससे, बाकी तुम देख लो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक है, बस भाभी लोगों को पसंद आ जाए, वो लोग कोई ड्रामा ना कर दें। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहेज से अगर जरगम मना ना करता तो वो भी हम दे देते। बस अब इसी बात की फ़िक्र है कि वो दोनों इस बात पे कोई तमाशा ना कर दें। हलीमा बेगम ने बैग जो बंद करके एक साइड पे करते हुए जवाब दिया, अल्लाह खैर करे, तुम बच्चियों को देख लो, किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, मैं ज़रा किचन देख आऊँ। समरीन ने उठते हुए कहा तो हलीमा ने सर हिलाते कमरे से बाहर निकल गई। माशाल्लाह से आप दोनों तो बहुत प्यारी लग रही हैं। मुझे तो अब पूरा यकीन है जरगम और आयस लाला की बच्ची खुची भी नाराज़गी जो हम लोगों से हुई इसे भूल जाएंगे। भाई इतनी खूबसूरत लड़कियां जो दे रहे हैं इन्हें, अपनी बीवियों को देखकर भूल जाएंगे ये दुश्मनी क्या चीज़ है। सलवा शाह ने अकीदत के कमरे में दाखिल होते अकीदत और हुरिया की मेहंदी की रस्म के लिए तैयार होते हुए शोख लहजे में कहा तो हुरिया ने मुंह बसौर कर इसे देखा। जर्दे की देग लग रही हूँ मैं तो। कहा भी था माँ जी से कि मुझे कोई और रंग लेने दे, मगर नहीं, अब अकीदत को देखो, जरगम लाला ने कितना प्यारा कलर लेके भेजा है। हुरिया के मुंह बसूर कर कहने पर सलवा शाह ने तासुफ से सर हिलाया, जबकि हाथ में मोबाइल थामे सोफे पे बैठी अकीदत ने सामने ड्रेसिंग टेबल के मिरर में नजर आते अपने अक्स को देखा। टी पिंक कलर का शरारा जिस पर सिल्वर कलर का खूबसूरत काम हुआ था, कानों में गुलाब और मोतियों की फूलों से बने इयररिंग पहने, माथे पर बिंदिया लगाए, नाजुक कलाइयों में गजरे पहने, मेकअप के नाम पे लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए, नाजुक सी चमकती डायमंड की छोटी सी नोज पिन चमक रही थी, सब्ज नगीनों जैसी आंखों में अलवाही ही चमक रही थी। जरगम खान के नाम से सजने पर वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि अकीदत का दिल ये सोचकर बेसाख्ता धड़का था कि जब वो सालम शख्स अपनी कुर्बत की बारिश में इस पर करेगा तो वो किस तरह इसके रंगों को छुपा सकेगी। अपनी सोच पे हड़बड़ाकर अकीदत ने नज़रों का जाविया बदल के हुरिया को देखा, जो येलो कलर के शरारा जिस
पे गोल्डन और ग्रीन कलर का गोटे का काम हुआ था, हाथों में गजरे पहने, जबकि माथे और कानों में गुलाब और मोतियों के फूलों की ज्वेलरी पहने, ब्राउन बालों को कमर पे खुला छोड़े, चेहरे पर मासूमियत सजाए रूठी हुई शहजादी सी लग रही थी, जिसे देख अकीदत ने अपनी मुस्कुराहट छिपाई। माशाल्लाह से इतनी प्यारी तो लग रही हो, अगर फिर भी दिल राजी नहीं हो रहा तो तुम चेंज कर लो। जरगम ने अपनी इतनी ड्रेसेस भेजी हैं, इसी डिज़ाइन में से एक और ड्रेस ले लो, बस कलर चेंज है वो पहन लो। जरगम ने नहायत लहजे अकीदत ने नरम लहजे में कहा तो हूरिया ने झट से नफ़ी में सर हिलाया। वो तो आपके मियाँ ने भेजा है भाई, मैं कैसे पहन सकती हूँ, और वैसे भी अब थोड़ा टाइम और लगाया तो माँ जी ने जान से मार देना हमें। हूरिया ने अपनी जगह से उठते हुए कहा तो सलवा ने भी तायीद की करते हुए सर इस बात में हिलाया। वाइट कलर की पाँव को छूती फ्राक के साथ नारंगी रंग का दुपट्टा लिए ग्रे आंखों में काजल की बारीक लकीर खींचकर इन्हें मजीद दिलकश बनाया गया था। ब्राउन बालों को नीचे से हल्के कलर डालकर कमर पर खुला छोड़ा गया था। लाइट मेकअप किए वो किसी को भी चारों खाने चित करने की सलाहियत थी। अब आप दोनों ये दुपट्टा ओढ़ लें और चलें मेरे साथ, नीचे रस्म शुरू होने वाली है। ग्रीन कलर का दुपट्टा घूंघट के अंदाज में हूरिया के सर पर देते हुए कहा तो अकीदत ने आगे बढ़कर खुद पर इस दुपट्टे को ओढ़ा। अभी वो तीनों बाहर निकलती कि बहराम शाह दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ। तुम ये शादी अपनी रजामंदी से कर रही हो? मतलब तुम सरगम खान के साथ दिल से रिश्ता निभाना चाहती हो या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है? अकीदत सलवा और हूरिया को बाहर भेजकर अब वो अकीदत के सामने बैठा संजीदा लहजे में इस्तफसार कर रहा था, जिस पर अकीदत ने आंखें घुमाई। तुम्हें लगता है मैं सरदार जरगम खान से खेल खेलूंगी और वो समझ नहीं सकेगा मैं क्या कर रही हूँ और क्यों? वो सब जानता है। बहराम तुम इसकी फिक्र मत करो, अगर इसे मेरे फैसले या इस फैसले के पीछे छुपी असल वजह से कोई मसला होता तो वो मुझे जान से मारकर इस मसले को ख़त्म कर देता। बहराम शाह की स्याह गहरी आंखों में आंखें गाड़े, होंठों पे पुरअसरार मुस्कुराहट सजाकर कहा तो बहराम ने सख्ती से अपनी मुठ्ठियां बींची। तुम्हें लगता है हम बदला नहीं ले सकते? तुम जो तुम इस सब का हिस्सा बन रही हो, अगर औरतों को ही ढाल बनाना होता तो ये काम बहुत पहले कर चुके होते। अकीदत जरगम खान पागल है जो तुम्हें इस खेल का हिस्सा बनने की इजाज़त दे रहा है। तुम दोनों कैसे अपने इस रिश्ते को इस दुश्मनी का हिस्सा बना सकते हो? अगर मैं इस शादी के लिए रजामंद हुआ हूँ तो ये मेरी बुज़दिली नहीं अकीदत, मैं बस बड़ों की लड़ाई से आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल ख़राब नहीं करना चाहता। अगर हम इस दुश्मनी को बिला वजह बढ़ावा देंगे तो कल आने वाली नस्ल भी बिना असल वजह जाने बस ख़ानदानी दुश्मनी का नाम देकर इसको दुश्मनी को निभाती रहेगी। शादी करनी है तो अपने लिए करो, अपने रिश्ते को निभाने के लिए करो, ताकि इस दुश्मनी की आड़ में एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए। सर्द स्टाप लहजे में कहते सुरख नज़रों से अकीदत के लापरवाह अंदाज को देखा। चलो सब बातें एक तरफ, ये दुश्मनी निभाकर या असल वजह के पूरे होने के बाद तुम या जरगम तुम्हें छोड़ देगा? जो मंग ना छोड़े वो बीवी को कैसे छोड़ देगा? अकीदत ये ना हो कि इसे हराते हराते तुम खुद इसके आगे अपना दिल ना हार दो। गहरी सांस भरकर अकीदत के पास चंद कदम के फासले पर खड़े होते नरम लहजे में कहा तो अकीदत ने नज़र उठाकर नेवी ब्लू शलवार कमीज पहने, कंधे पे स्याह रख फैलाए, चेहरे पर संजीदगी तारी किए नरम नज़रों से अपनी जानिब देखते बहराम शाह को देखा। तुमने कभी ये सुना बहराम के कभी कभी दूर जाने के लिए बहुत पास आना ज़रूरी होता है? मैं इसके करीब नहीं जाऊंगी तो दूर भी नहीं हो सकूंगी। जब जरगम खान के बहुत करीब जाना ही है ताकि हमेशा के लिए इससे बहुत दूर चले जाऊं। तुमसे झूठ नहीं बोल सकती, तुम्हारे सामने झूठ बोला ही नहीं जाता। इसका ये मतलब नहीं कि मैं जरगम के सामने झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल लेती हूँ इसके सामने क्योंकि वो सुन लेता है और झूठ के पीछे छुपे मेरे सच को भी मान लेता है। तुमसे झूठ बोलूंगी तो तुम्हें झूठ का अंदाज़ा तो हो जाएगा, मगर तुम कभी सच को जान नहीं सकोगे। और रही दिल हारने की बात तो वो मैं कब का हार चुकी। वो जानता है कि अकीदत शाह इसके सामने कई साल पहले हार चुकी है। मेरा हारना कबूल नहीं इसे, इसलिए ये खेल खेलने की इजाज़त दे रहा है। जब तक जीत के इसके बराबर नहीं आ जाती वो आगे नहीं बढ़ेगा। तुमने क्या कहा? दुश्मनी के लिए मैं ये सब ना करूं? सर्द स्टाप लहजे में एक एक लफ्ज़ चबाकर कहते आखिर में तंजिया लहजे में कहा तो बहराम शाह ने खाली खाली नज़रों से अकीदत के चेहरे को देखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कौल है कि ज़िल्लत उठाने से बेहतर है तकलीफ़ उठाओ। मैं तकलीफ़ उठा सकती हूँ, ज़िल्लत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारा बाप मर गया, मेरे 2 मामू मर गए, मेरा बाप शहीद हो गया, सब मर गए, दुश्मनी का आगाज़ करने वाले सब चले गए, मगर मेरे बाप के माथे पे कातिल और पीठ पे वार करने के वाले का स्याही लगा गए। मुझे वो स्याही मिटानी है बहराम शाह, चाहे इस स्याही को मिटाते मेरा नसीब ही क्यों ना इस स्याही से भर जाए। बेड के साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट निकालकर होंठों में दबाकर सुलगाते हुए सर्द लहजे में कहा तो बहराम ने सर्द सांस भरते नफ़ी में सर हिलाया।
کچھ نہیں ہو سکتا تم لوگوں کا، سارے کے سارے پاگل خر کے بچے ہیں یہاں، میرا دماغ گھوما ہوا ہے میرا۔ اور اب اپنا مزاجی خدا کو فون کر کے پوچھ لو کہ خان حویلی میں مہندی کی ہونے والی رسم کو کیوں روک دیا تم نے؟ آتش بازی کا سامان تو ٹوکرا بھر بھر کے ارمغان خان نے منگوایا تھا، مگر رائفل چلنے کی کیا پٹاخہ چلنے کی بھی آواز نہیں آئی۔ میں تو کانوں میں ڈھالنے کے لیے کاٹن کے ڈبے بھر کے لایا تھا، گاڑی میں پڑے ہیں بیچارے۔ یہ خان بیوی آنے سے پہلے ہی سدھر گئے ہیں یا کوئی اور کھچڑی پکا رہے ہیں؟ پوچھ کے بتا دینا، پھر کھانے چلیں گے۔ عقیدت کے ہونٹوں سے سگریٹ نکال کر نیچے زمین پر پھینک کر اپنے پاؤں سے مسلتے ہوئے کہا تو عقیدت نے گھور کر بہرام شاہ کو دیکھا، جس پہ بہرام نے ڈبل گوری سے عقیدت کو دیکھتے دوپٹے کا گھونگھٹ عقیدت کے چہرے پر کیا۔ سسرال سے مہندی آنے والی تمہاری اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ دلہن سگریٹ پیتی ہے تو تمہاری ساس کو تمہارے جانے سے پہلے ہی دل کا دورہ پڑ جانا ہے۔ نفی میں سر ہلاتے عقیدت کا ہاتھ پکڑتے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے تو گھونگھٹ میں منہ بسور کر عقیدت نے بہرام کی پشت کو گھورا۔ جب سے سلویٰ کو پتہ چلا تھا کہ خان حویلی سے عقیدت اور حوریہ کے لیے مہندی لے کر ارمغان خان آیا ہے، تب سے وہ بے چینی سے کچن میں چکر کاٹ رہی تھی، بری طرح اپنا لب کچلتے کچن کی کھڑکی سے باہر لان میں جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلفا بی بی، وہ سمرین بیگم کہہ رہی ہیں، وہ مہندی لگانے والی آ گئی ہے، رسم ختم ہونے سے پہلے آپ مہندی لگوا لیں پہلے، پھر حوریہ اور عقیدت بی بی کو لگوا دیجیے گا۔ ملازمہ کی آواز پر سلویٰ ہڑبڑا کر پلٹی، سخت نظروں سے ملازمہ کو گھور کر دیکھا۔ پتہ ہے مجھے، تم یہ بتاؤ خان حویلی سے اور کون کون آیا ہے؟ ایک تو عقیدت لالی کا دیور ہے، اور کوئی نہیں آیا کیا؟ چہرے پر سنجیدگی طاری کیے سرسی سے لہجے میں استفسار کیا، جبکہ گرے آنکھیں کھڑکی پر ٹکی ارمغان کو تلاش کر رہی تھی۔ بی بی جی، وہ ارمغان خان اور ان کی بہن آئی ہے امشال، ملازمہ نے ہاتھ جھلاتے ہوئے کہا تو سلویٰ کے ماتھے پر بے شمار بل نمودار ہوئے، سخت نظروں سے ملازمہ کو گھورتی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ ارمغان لالا، سمجھ آئی؟ اب اس کا نام لیا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گی، دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو ملازمہ ڈر کے بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سلویٰ کے چہرے کے خطرناک تاثرات دیکھتے سر جلدی سے اس بات میں ہلایا، جاؤ اب یہاں سے، باہر نظر بھی مت آنا مجھے، سلویٰ لہجے میں کہا، سخت لہجے میں کہا تو ملازمہ سر ہلاتی 420 کی سپیڈ میں وہاں سے غائب ہوئی۔ اف، یہ خان تو بری طرح میرے حواسوں پہ چھا رہا ہے۔ گہری سانس بھرتے، ہونٹ کا کونا دانتوں تلے دباتے سرگوشی کی، 2 گلاسوں میں کولڈ ڈرنک ڈال کر ٹرے میں رکھی اور قدم باہر لان کی جانب بڑھائے۔ سلویٰ باہر لان میں آئی تو اسے ارمغان خان کہیں نہ دکھا۔ روشنیوں سے جگمگاتے لان میں نظروں کو دڑاتے سلویٰ نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی، تبھی بے ساختہ نظر اپنی بائیں جانب اٹھی تو سلویٰ کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ سفید کلر کا کرتا شلوار پہنے، کرتے پر بلیک کلر کی واسکٹ پہنے، چہرے پر سنجیدگی طاری کیے، وہ معمولی سے ہٹ کر بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہلکی بڑی ہوئی بریڈ ارمغان خان کو وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ ارمغان خان کو موبائل پر کسی سے بات کرتے بیک سائیڈ کی طرف جاتے دیکھ سلویٰ نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، مگر سب کو دلہنوں کی طرف متوجہ پا کر دبے پاؤں ارمغان کی جانب بڑھی۔ ابھی میں مصروف ہوں، لالا کی شادی ہو جائے پھر شہر لگاتا ہوں چکر۔ نہیں ابھی نہیں، میں ویسے بھی آج کل مصروف ہوں، شہر نہیں آ سکتا۔ ارمغان خان کو موبائل پر کسی سے بات کرتے سن سلویٰ شاہ نے بری طرح پہلو بدلا۔ ابھی وہ پلٹ کے جاتی، ارمغان نے اپنی سخت گرفت میں سلویٰ کی کلائی کو جکڑ کر اسے پلر کے ساتھ پن کیا۔ حویلی کے ایک طرف مردان خانہ تھا جس کا دروازہ دوسری جانب تھا۔ ارمغان خان مہندی کی چیزیں خلیمہ بیگم کے حوالے کرتا وہاں سے چلا گیا تھا، مگر وہاں شاہ خاندان کے لڑکے محفل لگائے بیٹھے تھے کیونکہ انہیں عورتوں کی طرف آنے کی اجازت نہیں تھی۔ مگر ارمغان خان کو حلیمہ بیگم نے پیغام بھیج کر اس طرف بلا لیا تھا۔ ایک تو وہ عقیدت لوگوں کا کزن تھا اور دوسرا چھوٹا دیور تھا۔ عمر میں چاہے وہ بڑا تھا مگر رشتے میں وہ دونوں سے چھوٹا تھا، اسی وجہ سے حلیمہ بیگم نے کہا تھا کہ وہ بھی آ کر رسم کر لے۔ رسم کے دوران مسلسل آتی اپنے دوست کی کال کو دیکھ ارمغان خان اس سے بات کرنے کی خاطر اس طرف چلا آیا تھا، مگر اپنی پشت پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ سمجھ گیا تھا کہ کون بے خوفی سے ارمغان خان پر نظریں ٹکا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھتے نہ جانے کتنے ہی خاموش معنی خیز لمحے گزر گئے۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اگر کوئی تمہیں اس طرح کرتے دیکھ لیتا، انجام جانتی ہو تم اس بات کا؟ دبے لبے لہجے میں گرا کر کہا تو سلویٰ شاہ نے بے یقینی سے ارمغان خان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔
जहाँ तक इसे इतने दिनों में वो इसके बारे में जान चुकी थी। इसके मुताबिक अरमगान खान कभी किसी औरत से सख्त लहजे में बात नहीं करता था। अब शायद सलवा की गलती हो सकती है, मगर इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल, मेरा घर मेरी मर्जी। खान अरमगान खान, अगर तुम्हें मेरे अंजाम से ज़्यादा अपने अंजाम की फ़िक्र है तो बताओ, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि सलवा शाह पर उंगली उठा सके। अरमगान को खून छलकाती आंखों में अपनी ग्रे आंखें गाड़े मजबूत लहजे में कहा तो अरमगान ने सख्ती से अपनी मुठियां बीची। मेरा अंजाम जो होना था हो गया, तुम अपने अंजाम की फिक्र करो। अगर तुम नहीं चाहती कि मेरा अंजाम टूटकर तुम्हारा अंजाम टूटकर बिखरना हो तो मुझसे दूर रहो सलवा शाह। कोशिश करो कि तुम्हारी ये शक्ल मुझे आज के बाद कभी ना दिखे, सर्द स्टाप लहजे में कहते सलवा की कलाई थामकर झटका देखते दूसरी जानिब किया तो सलवा को नाक से अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। आंखों के कोने बेसाख्ता नम हुए, जिन्हें देख अरमगान ने सख्ती से अपने जबड़े बीछे। मेरे अंजाम की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं खान, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने का, मगर फिर भी तुम्हें कोई मसला है तो अपनी आंखें निकाल लो, क्योंकि मोहब्बत और हसरत से देखने वाले मुझे बहुत हैं। तुम्हारी आंखों की जरूरत नहीं। कंधे झुकाकर तंजिया नजरों से अरमगान खान को देखते कहा, मगर सलवा की इस बात पर अरमगान को अपना खून खोलता हुआ महसूस हुआ। 2 कदम के फासले को समेटकर सलवा के दोनों बाजू को अपनी आहनी गिरफ्त में लेके झटका दिया। सलवा शाह, मेरा थोड़ा सा भी हक होता ना तुम पर तो यकीन मानो मैं आइस खान या जरगम खान नहीं हूँ जो तंज में या नफरत या नाराजगी समझकर इन बातों को नजरअंदाज कर दो। मैं अरमगान खान हूँ, लोग मुझे सर फिरा खान कहते हैं। ये मजाक भी होता तब भी तुम्हारी जुबान काट के हाथ में रख देता। खान हूँ मैं, और खान जान पर तो समझौता कर सकता है मगर इज्जत और गैरत पर नहीं करता। सिर्फ नाम या जिस्म पर अपनी छाप नहीं छोड़ने वाला मैं, दिलो दिमाग पर नक्श होने वाला खान हूँ मैं। और जहाँ अरमगान खान होता है वहाँ कोई दूसरा नहीं हो सकता, चाहे फिर वो किसी की जिंदगी हो या दिलो दिमाग की सोच की दुनिया। दबे दबे लहजे में कराकर कहते एक ही झटके में सलवा शाह को खुद से दूर धकेला। जाहल जंगली इंसान, यही बात तुम आराम से भी कर सकते थे। बाजू तोड़ दिए मेरे। अपने बाजू को सहलाते शिकवा कना नजरों से अरमगान को देखते हुए कहा तो अरमगान खान को अपने रद्द अमल पर मलाल हुआ। दिल टूटने से बहुत बेहतर है ये। सलवा शाह के ग्रे आंखों में अपनी शहद रंग आंखें गाड़कर सरगोशी से भी कम आवाज में कहता वहां से निकलता चला गया, जबकि सलवा साकत सी खड़ी अरमगान की बात को समझने की कोशिश कर रही थी। तुम ये शादी नहीं करोगे आयस, अगर तुमने ये मेरी शादी की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मुबीन बेगम के चिल्लाकर कहने पर आयस खान ने अपनी खामोश नजरों से इनकी जानिब देखा। आइस खान जिद करके मुबीन बेगम को हवेली तो ले आया था, मगर हवेली आकर जब से इन्हें शादी की बात का पता चला था तब से इन्होंने वावेला मचाया हुआ था। मैं इस घटिया लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। वो क्या, शाह खानदान की किसी भी लड़की को तुम्हारी बीवी नहीं बनने दूंगी। अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो इमशाल से कर लो, या तुम्हारी इंडस्ट्री में तो इतनी लड़कियां हैं, इनसे कर लो। मगर अगर ये सब तुम अपनी गैरत की वजह से कर रहे हो तो वो तुम्हारी मंग है, किसी और की बीवी नहीं बन सकती। तो याद रखो, तुम्हारे अलावा कोई इसे नहीं अपनाने वाला। अगर ये दुश्मनी की वजह से कर रहे हो तो ये शादी का खड़ाक डालने की क्या जरूरत है। अपने बंदों से कहकर उठवा लो और ले जाओ फार्म हाउस, दिल बहलाकर फेंक। अभी मुबीन बेगम अपनी बात मुकम्मल करती कि आइस खान बिफरे हुए शेर की तरह इनकी तरफ बढ़ा और अपनी जगह से उठा। कमरे के बीचों बीच पड़े ग्लास टेबल को उठाकर जमीन बोस किया तो कमरे में जोरदार धमाके से कांच के टूटने दूर दूर तक फैल गए। और जस्ट शट अप, एक और लफ्ज नहीं। इतना कुछ कर लिया आप लोगों ने, अभी भी दिल नहीं भरा। जरगम लाला की कसम ना होती तो मैं सबको जिंदा जमीन में गाड़ देता, मगर अब अगर आपने एक लफ्ज भी और कहा या कुछ करने की कोशिश की तो याद रखिएगा, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। हुरिया शाह मेरी मंग और कल से मेरी बीवी बन जाएगी। इसके अलावा मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। इमशाल मेरी बहनों जैसी नहीं, मेरी बहन ही है। और अब अगर आपने इसके और मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचा तो इंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। हुरिया के अलावा मेरे पास कोई और अपना नहीं सकता, और मेरी पहली सांस से आखिरी सांस तक मेरे नाम से ही मंसूब रहेगी। वो मेरी थी और हताहयात मेरी ही रहने वाली है। वो मेरे लिए दुश्मनी का कोई मोहरा या दिल बहलाने का सामान नहीं। हुरिया शाह इस खान की ज़िंदगी है, मेरे इस पत्थर दिल को धड़कने देने वाली हुरिया शाह है। मैं आज जिस मकाम पर हूँ तो वही वजह और सिर्फ हुरिया शाह है। कोई नहीं था मेरा, ना आप ना बाबा। सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। बाबा और आप दोनों मेरे नहीं थे, दोनों बटे हुए थे। वो थी तब मेरी वहशतों की साथी, जिसकी मुकम्मल ज़ात आइस खान की थी, जो मेरी मलकियत थी। इसके खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा या किया तो अंजाम मौत से भी बदतर होगा। इसलिए आपसे पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बीवी को कोई किसी साजिश का हिस्सा बनाने की कोशिश भी मत करिएगा। पहले ही हम भाई आप लोग दोनों औरतों की बेजा जिद्दों और साजिशों पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं कि माएँ हैं, औलाद पे हक है इनका, इसलिए उफ तक नहीं किया। मगर अब आप दोनों ने कुछ किया, जरगम का तो नहीं। मैं इस सब छोड़कर अपनी बीवी को कहीं दूर ले जाऊंगा। ये दौलत, ये शहर, शोहरत, इज्जत, मर्तबा, खानदान
सब आप दोनों को ही मुबारक। कमरे की हर चीज़ को ज़मीन बोस करते कराते हुए कहा तो मुबीन बेगम ने अपने होंठों पे हाथ रख के अपनी चीख का गला घोंटा। आइस खान अपने दिल की भड़ास निकालकर जब कमरे से चला गया तो मुबीन बेगम ने डरते डरते इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। कमरे की बिखरी हालत देख इन्हें अपने खुश्क पड़ते हलक को तर किया। ये तो आइस खान का रद्द अमल था। अगर अरमगान खान जो इतनी खामोशी इख्तियार किए हुए बैठा था इसका लावा फटता तो क्या होगा। ये सोचते ही मुबीन बेगम ने जल्द अज जल्द शहर लौटने का प्लान बनाया। वो यहाँ रहकर अरमगान के हाथों मरना नहीं चाहती थी, इसलिए मुलाजमा को बुलाकर कमरे की हालत दुरुस्त कराई और अपने बैग जल्दी से बैग किया। फुर्सत मिल गई बीवी का फ़ोन उठाने की। जरगम की कॉल रिसीव करने पर अकीदत ने दांत पीस कर कहा तो दूसरी जानब अपनी छत पे खड़े खान ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की, जबकि नज़रें रोशनियों में नहाई शाह हवेली पर मज़कूर थी, जो काफ़ी फासले पर होने के बावजूद भी अपनी आबोताब रोशनियों से झिलमिलाती नजर आ रही थी। फ़ोन क्यों किया है? कल तो आ रहा हूँ तुम्हें हमेशा के लिए लेने। नज़रें हवेली से हटाकर आसमान पे नजर आते चांद पे टिकाए मध्यम लहजे में जवाब दिया तो अकीदत शाह ने घूर कर मोबाइल फ़ोन को देखा। मैंने सुना है तुमने मेहंदी की रस्म से मना कर दिया। सभी इंतज़ाम होने के बावजूद भी कोई रस्म नहीं हुई खान हवेली में। अगर शादी इंतकाम के लिए भी कर रहे हो तो तुम्हारा बनता है धूमधाम से शादी करना, मगर ये रस्में ना करके तुम साबित क्या करना चाहते हो जरगम? अकीदत के संजीदा लहजे को सुन के जरगम ने अपना माथे को सहलाया। मेरा मीटर पहले ही गुमा हुआ है। ये बार बार इंतकाम और दुश्मनी की गर्दान करना बंद करो। अकीदत नहीं पसंद मुझे ये फजूल की रस्में। जो ज़रूरी था वो मैं कर रहा हूँ। सर्द लहजे में एक एक लफ्ज़ चिबाकर कहा तो अकीदत शाह की मुतरन्नम हंसी गूंजी, जिसे सुन अरगम को अपनी रगो पे में सुकून सराहियत करता महसूस हुआ। ये फजूल है, और जो तुमने एक ही डिज़ाइन के 7 रंगों में ड्रेस भेजे हैं वो फजूल खर्ची नहीं है, और फिर हर कलर के साथ मैचिंग ज्वेलरी वगैरह, ये तुम्हें फजूल खर्ची नहीं लगी? अपनी बीवी पर लौटाना फजूल खर्ची नहीं बल्कि ये मोहब्बत के इजहार और इसकी परवाह करने को ज़ाहिर करता है। ये ज़ाहिर करता है कि वो अपने शोहर के लिए कितनी अहमियत रखती है। ये दौलत मैंने कब्र में लेके नहीं जानी, ना ही मैंने पेट में खजाना जमा करने वाली मशीन फिट की है। अब कमाता हूँ तो अपनी बीवी बच्चों पर ही खर्च करूंगा ना। अब मेरा सर ना खाओ, फ़ोन रखो। जरगम के झुंझलाकर कहने पर अकीदत ने अपनी मुस्कुराहट व मुश्किल छिपाई। अच्छा, दिमाग नहीं खाती, मगर तुम्हें खा जाऊं तो कोई एतराज़ तो नहीं? अकीदत शाह की शोखी में डूबी आवाज़ को सुनकर जरगम खान का दिल बेसाख्ता धड़का। कल यही बात हमारे बेडरूम में करना, तब इसका अमली तौर पर जवाब दूंगा। कदम सीढ़ियों से नीचे आते जानी बढ़ाते हुए जवाब दिया तो अकीदत समझने के अंदाज में सर इस बात में हिलाया। वैसे हो कहाँ तुम? मैं डेरे पे आ जाती हूँ। वहाँ भी तो तुम्हारा रूम है ना, वहाँ आकर कह देती हूँ। कल तक इंतज़ार। अभी अकीदत अपनी बात मुकम्मल करती कि फ़ोन से जरगम खान की सर्द आवाज़ गूंजी। टांगे तोड़ दूंगा अगर तुम हवेली से बाहर भी निकली। डेरे पर सारे खानदान के मर्द जमा है। अगर किसी की नज़र भी तुम पर पड़ी तो इसके साथ अपने अंजाम के लिए भी तैयार रहना। और अभी चुपचाप सो जाओ, क्योंकि कल से वैसे भी तुम्हारी नींदें उड़ने वाली हैं। सख्त लहजे में कहकर खटाक से फ़ोन बंद किया तो अकीदत ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां बींचकर मोबाइल को पूरी शिद्दत से दीवार में मारा। खड़ूस शख्स, तुम्हारे मीटर को तो मैं आके ही सेट करूंगी। दांत पीस के कहते एक नज़र मोबाइल की टूटी स्क्रीन पर डालकर अपने हाथों में मेहंदी को देखा, जो कोहनियों से लेके हाथों तक भर भर के लगाई गई थी। मेहंदी में छुपे जरगम के नाम को देख अकीदत ने गहरी सांस भरते कदम बेड की जानिब बढ़ाए। हुरिया ने एक नज़र अपने हाथों पे लगी आइस के नाम की मेहंदी को देखा और एक नज़र आईने में आते अपने अक्स को। आए तुम्हारी गलती में एक और गुनाह भी शामिल हो गया हुरिया शाह, आइस खान का हक किसी और को देने का। मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा तुम्हें हुरिया शाह, कभी भी माफ़ नहीं करूंगा। आइस खान तो अपनी मलकियत पर किसी की नज़र बर्दाश्त न करे, कजा इसके दिल में किसी और के लिए जज्बात का होना। मेरा दिल चाह रहा है इस वक्त सारी दुनिया को तहस नहस कर दूं या तुम्हें ही गोली से उड़ा दूं। सोचो हुरिया शाह, यह तो सिर्फ मेरे नफरत की इंतहा है। मोहब्बत और इश्क तो बहुत बाद की बातें हैं। ये ना हो मेरी नफरत में ही वो मैं सब कर जाऊं जो लोग मोहब्बत में भी नहीं करते। मेरी सारी हदों को तोड़कर इससे बेहतर है तुम मेरे हसार की हदूद में आ जाओ, ताकि ये दोनों खानदान और तुम तबाह होने से बच जाओ। कानों में आइस खान की सर्द आवाज़ गूंजी तो हुरिया ने अपने खुश्क पड़ते हल को तर्क करते गहरी सांस भरी। क्या आइस मुझे अपनी सफाई पेश करने का एक मौका भी नहीं देगा? अगर कभी इसे पता चल गया कि वो शख्स, उफ, वो तो जान से ही मार देगा। कैसे यकीन दिलाऊंगी कि इसे कि ऐसा कुछ भी नहीं, मुझसे गलती हुई थी, गुनाह नहीं किया मैंने। मगर आइस खान समझेगा तब ना। इसकी नज़र में तो ये भी किसी गुनाह से कम नहीं। एक दुनिया की दूसरी दुल्हनें होती हैं जो इस दिन अपनी ज़िंदगी में आने वाले सबसे ख़ास दिन के लिए सोच के लाल पीली हो रही होती हैं। एक मैं हूँ जो कल का सोच के लाल पीली तो हो रही हूँ, मगर शर्माने की वजह से नहीं, आइस खान के जलाली रूप का तन तनहा मुकाबला करने का सोच के।
ड्रेसिंग टेबल पर चीज़ें पटक कर रखते बड़बड़ा कर कहा। कबर्ड से आरामदाह सूट निकाल कर चेंज करने चली गई। बेड पे लेटते नींद की वादियों में खोने का सोच कर महू आयस खान की ज़ात थी। बारात बस पहुंचने ही वाली थी। बहराम शाह और शाह खानदान के दरमियान दूसरे मर्दान खाने की हवेली के सामने गेट के पास बारात का इस्तकबाल के लिए खड़े थे। बारात अभी शाह हवेली पहुंची नहीं थी, मगर आसमान में गोलियां गूंजती की थरथराहट से अंदाजा हो रहा था कि खान बारात ला रहे हैं। बहराम शाह ने शादी में किसी चीज़ से रोक टोक नहीं की थी, मगर जरगम को पैगाम ज़रूर भेजा था कि वो अपने कज़न को और ख़ास तौर पर अरमगान को फायरिंग ना करने दे। खुशी के इजहार के और भी बहुत से तरीके होते हैं। एक तो ये काम गैर कानूनी है, दूसरा अगर अनजाने से किसी को गोली लग गई तो कोई जानी नुकसान हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार है। वो मीडिया का हिस्सा था और अक्सर वो शादी में होने वाली फायरिंग की वजह से लोगों के जान से जाने की न्यूज़ सुनता था और इसके खिलाफ एक्शन भी ले चुका था। और गांव में शादी ब्याह पर होनी फायरिंग की पाबंदी थी, मगर ये दिमाग से खिसके हुए खानों को वो किस तरह समझाता। बारात हवेली के गेट पे आके रुकी तो फिजा एक बार फिर गोलियों की थरथराहट से गूंज उठी। खान अपनी अपनी गाड़ियों से सर निकालते कहके लगाते फायरिंग और पैसों की बौछार कर रहे थे, जिसे देख बहराम शाह ने तासुब से सर हिलाया। छोटे बच्चों को पैसे पकड़ने के लिए एक दूसरे को धक्के देते ज़मीन पर गिरते देख बहराम शाह ने गहरी सांस भर के अपने इत्तेशाल को काबू पाया। तभी एक ब्लैक लैंड क्रूजर से आयस खान बाहर आया। ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहने जिस पे गोल्डन काम हुआ था, पाँव में गोल्डन कलर का खुस्सा पहने, स्याह घने बालों को जेल से सेट किए, दाजी का हाथ थामे मजबूत कदम लेता बहराम शाह के सामने आकर रुका। अपने सामने पठानी नकूश वाले मगरूर मगर ज़्यादातर खामोश रहने वाले शहजादे को देख बहराम शाह ने आगे बढ़ के आयस खान को गले में पैसों वाला हार की माला पहनाई। आयस खान से मिलने के बाद अपना सर दाजी के आगे झुकाया तो इन्होंने मुस्कुराते हुए बहराम शाह को ढेरें दुआएं दे डाली। और तभी फिजा गोलियों की थरथराहट से धूम की ढोल की ताप से गूंज उठी, जिस पे बहराम शाह ने अपनी आंखें सख्ती से मींच के गुस्सा जब्त किया, क्योंकि इसे अंदाज़ा हो गया था कि यह सब इसे चढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है। तभी आयस खान की गाड़ी के सामने जरगम की कार आकर झटके से रुकी। जरगम की कार के रुकने पर इसके दोस्तों ने कार के आगे भंगड़े डालने शुरू किए तो बहराम शाह को लगा कि अब इसका जबर टूट जाएगा, जबकि आयस खान खामोशी से बहराम शाह को लगा कि अब इसका ज़बर टूट जाएगा, जबकि आयस खान खामोशी से गर्दन मोड़कर जरगम को देख रहा था, जो ब्लैक कलर की शेरवानी पहने किसी रियासत का शहजादा ही लग रहा था। चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लिए बहराम शाह को देखा। अपने दोस्तों को पीछे हटाता बहराम शाह के करीब आके रुका, जिस पे बहराम शाह ने तासुब से सर हिलाते जरगम को गले लगाया। साले साहब, आज तो अगर तुम मुझ पे बंदूक भी तान लेते तो ये खान तुम्हें माफ़ कर देता। बंदूक तानने का इसलिए कहा क्योंकि जान से मारने की इजाज़त तो सिर्फ तुम्हारी बहन को है। जरगम खान की सरगोशी पर बहराम शाह की नज़रें बेसाख्ता आइस की शेरवानी पर नजर आते लेज़र लाइट की सुरख निशान पे गई। फिक्र मत करो, मैं बंदूक नहीं तान रहा, मगर मेरी बहन ज़रूर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देगी। जरगम का कंधा थप थपा कर कहा तो बहराम शाह की बात पर जरगम का कहका दिलकश कहका गूंजा, जिस पर सर झटकते बहराम शाह मेहमानों को लेकर अंदर की जानिब बढ़ा। प्याजी रंग की साड़ी पहने जिस पे सिल्वर कलर का काम हुआ था, ब्राउन बालों की दरमियान से मांग निकाल के स्ट्रेट करके पीछे कमर पे खुला छोड़ा गया था। हाथों में सोने के कंगन पहने, गले में डायमंड का खूबसूरत पेंडेंट और कानों में डायमंड के ही इयररिंग पहने, लाइट मेकअप किए, साड़ी का पल्लू थामे हाथ में सहज सहज के चलती नज़रों को ठटका रही थी। अपने क़यामत खेज बिजलियां गिराते हुस्न से लापरवाह सीढ़ियां चढ़ते मतलाशी नज़रों से अकीदत और हुरिया के रूम को तलाश कर रही थी। उफ, किस तरफ जाऊं अब, पता नहीं क्या कहा था मुलाजमा ने। ऊपर आकर इर्द गिर्द निगाह दोहराते मुंह में बड़बड़ाकर कहा। सर झटक दाएं जाने मौजूद राहदारी की जानिब कदम बढ़ाए, मगर अंदर से आंधी तूफान की तरह आता बहराम शाह अपने मोबाइल से घुम तेज तेज कदम लेता इमशाल के नाजुक वजूद से टकराया। इस जोरदार तासम पर इमशाल की चीख बेसाख्ता थी। अभी वो लड़खड़ाकर नीचे गिरती कि बहराम शाह ने हड़बड़ाकर अपने दायां कसरती बाजू को इमशाल खान की कमर के गिर्द लपेट के अपनी जानिब खींचा। इस इत्तेफाक पर दोनों की धड़कनें बेअहम होंगी। जिंदगी में पहली बार बहराम शाह को अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ। बाईं हाथ में मौजूद मोबाइल हाथ से छूटता ज़मीन बोस हुआ, मगर यहाँ परवाह ही किसे
थी। अपने दोनों बाजू इमशाल खान की कमर के गिर्द लपेटकर इसे अपने करीब तर कर लिया। नज़रें बेखुद ही होती इमशाल खान के खूबसूरत नकूश में उलझने लगी। नज़रें सख्ती से मीची आंखों से होती कंपकपाती गुलाब सी नाजुक पंखड़ियों पर आन ठहरी। कमर से सरकता हाथ चेहरे के करीब आया। अभी बहराम शाह इन नर्मो नाज़िक गुलाबी भरे भरे गालों को नरमी को महसूस करता कि इमशाल खान ने पट से अपनी शहद रंग आंखों को खोला। वो मैं दुल्हनों का पूछने आई थी। बहराम शाह के हिसार को तोड़कर 4 कदम के फासले पर खड़े होते इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हुए कहा तो बहराम शाह ने अपने चेहरे पर हाथ फेर कर अपने उमड़ने वाले जज्बात को काबू पाया। नीले रंग के कुर्ते के साथ सफ़ेद शलवार पहने स्याह घने बालों में हाथ फेरते गहरी निगाह इमशाल के होशरुबा सरापे पे डाली। नजरें इमशाल खान के चेहरे पे गई तो बहराम शाह के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। वो इर्द गिर्द निगाह दौड़ाती खुद को कंपोज करने की कोशिश करती बार बार अपने खुश्क पड़ते होंठों को तर कर रही थी। सब नीचे दुल्हनों का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछने आई थी। निकाह भी रूम में ही हो गया और अब तो रुखसती का भी वक्त होने वाला है, मगर दुल्हनें अभी तक नीचे नहीं आई। शहद रंग आंखों में मासूमियत लिए एक नज़र बहराम शाह की गहरी सी आंखों में देख नजरें फेर कर अपना मसला बताया तो बहराम शाह ने नीचे झुककर अपना मोबाइल